Hello everyone. Today we will start chapter 2 of history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this chapter we will read about the Russian Revolution and how socialism came in the Europe and how it was started in Russia. That is the theme of the chapter. Look at the picture. Here you can see the leader of Bolshevik party named as Lenin. In this chapter, we will read about the age of social change, like liberals, radicals, and conservatives. We will also read industries and the social change, socialism in Europe, Robert Owen, Louis Blanc, Karl Marx, Friedrich Engels. And along with them, we also read about the support for socialism by the Social Democratic Party, Labour Party in Britain, and Socialist Party in France. Then we will read in the next part the Russian Revolution, economy and society, socialism in Russia, the Russian Socialist Democratic Labour Party, division of Bolshevik and Mensheviks, the 1905 Revolution, Bloody Sunday, St. Petersburg, Father Gapan, elected consultative parliament or Duma, and the First World War in the Russian Empire. So then we will read the February Revolution in Petrograd, event effects, October Revolution, event effects, the Civil War, making a socialist society, strength and collective farming, global influence. This lesson throws light on the coming of socialism in Europe and the dramatic events that forced the ruling monarch, Tsar Nicholas II, to give up power. One can see how the ideals of socialism brought about Russian Revolution. इस लेसन में हम पढ़ते हैं जार निकोलस के बारे में कि कैसे वर्कर्स ने और पीजेंट्स ने जार निकोलस को गद्दी से हटा दिया और किस तरह से इस क्रांति के बाद रशिया में समाजवाद की शुरुआत हुई. द एज ऑफ सोशल चेंज, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप. फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ दुनिया को बहुत सारी नई चीजें मिली और दुनिया समाज में ड्रामेटिक चेंजेस आने लगे, जैसे कि पीपल वर कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल्स. तीन तरह के समाज में या विचारधाराओं में समाज बट गया, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स. कंजर्वेटिव्स वर दोज हु बिलीव इन the culture and they don't want any kind of changes. Liberals were liberal, or they believe in the changes, but they were not in favor of right to vote to women and those who are not having the properties. And radicals were those who believe in the changes, but their changes should be gradual. Europe was divided between three different ideologies. These were liberals, radicals, and the conservatives. Liberals wanted a nation which tolerated all the religion. Liberals वो लोग थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन वो डायनेस्टिक पावर के, अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक पावर के खिलाफ थे. They wanted right for individuals. वो सभी के लिए समान अधिकारों में विश्वास करते थे, लेकिन महिलाओं को वोट देने के अधिकार के पक्ष में वो लोग नहीं थे. Then they argued for an elected parliamentary government subject to laws. और वो एक ऐसी संस्था चाहते थे जो जहां पर की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो और जहां पर न्याय व्यवस्था जो है वो बेहतरीन तरीके से हो और न्याय व्यवस्था के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर किसी भी राजा या अधिकारी का कोई नियंत्रण ना हो. They were not democrats. वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे. Who were radicals? अगर आपसे डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं तो radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. radicals वो लोग थे जो कि इस बात में विश्वास रखते थे कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, उसके आधार पर सरकार का निर्माण किया जाए, यानी कि जैसा मोस्टली लोग चाहते हैं वैसी ही सरकार बने. दे डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू. वो ये नहीं चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में हो. नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस पर भी वो पसंद नहीं करते थे.
अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर ओपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ये बिल्कुल ही विरोधी थे रेडिकल्स और लिबरल्स के। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, however, even conservatives had opened their minds to the need for change. फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक तो उनको ये लगता था कि परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर तो इट विल ऑल्सो चेंज और डिस्टर्ब द कल्चर ऑफ कंट्री, तो वो कल्चर को भी हमारे खत्म कर देंगे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्हें ये रियलाइज होने लगा कि चेंजेस तो होने ही हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए ताकि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected. 19th सेंचुरी में तक आते आते उन्होंने चेंजेस को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। फिर भी उनका मानना था कि जो हमारा पास्ट है उसका हमें रिगार्ड करना चाहिए। चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, और जो परिवर्तन है समाज में वो धीरे धीरे आए, क्योंकि अगर एकदम से चीजें परिवर्तित होती हैं तो उससे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, और अगर हम एकदम से चीजों को बदलेंगे तो हमारा कल्चर भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा, डिस्टर्ब होगा। तो हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है, हमें अपने कल्चर को बचा के रखना है, हमें अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशंस को बचा कर रखना है। इसलिए चेंजेस हों, लेकिन वो इस तरीके से हों कि उससे समाज में एकदम से कोई हलचल ना हो, खलबली ना मचे। धीरे धीरे वो परिवर्तन हमारे जीवन का हिस्सा बनते जाएं, लेकिन एकदम से वो परिवर्तन ना हो, अन्यथा उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जान चुके थे कि परिवर्तन तो होगा, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं और उन चीजों का हमारे जीवन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उन चीजों को हम स्वीकार करें, और वो तब होगा जब धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाएगा। इंडस्ट्रीज एंड द सोशल चेंज। इंडस्ट्रीज के आने के बाद समाज में क्या क्या परिवर्तन आए थे? इट वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये वो समय था जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, और उसकी वजह से वो मेन और वो लोग जो केवल खेतों में काम करते थे, महिलाएं, बच्चे या पुरुष, अब वो फैक्ट्रीज में काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। नो डाउट पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए बेरोजगारी ज्यादा थी और फैक्ट्री में कम कीमत पर ही काम करने के लिए लोग तैयार थे। उसकी वजह से शहरों में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसके कारण शहरों में व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये दो प्रमुख शहर थे जहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे थे और उन्होंने शहरों में रहना शुरू कर दिया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि शहरों में ना रहकर अपने नेटिव प्लेस से ही डेली अप डाउन करते थे, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा था, क्योंकि अब उनकी आय का एक और साधन बन गया था। हालांकि जो वर्कर्स की कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। दो अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग थे, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। एक वो जो हाथ से काम करते थे और दूसरा वो जो मशीनों से काम करते थे। नो डाउट जो हाथ से काम करने वाले या जो मेटल का काम करने वाले कारीगर थे, उनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। इंडस्ट्रीज के लिए मशीनें तैयार करनी थी और मशीनें तैयार करने का काम ये मेटल मैकेनिक्स ही करते थे। तो नो डाउट जो मेटल वर्कर्स थे उनके काम की ज्यादा कीमत थी, उनकी मजदूरी ज्यादा थी, लेकिन वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। मजदूरों को 15 से 17 घंटे तक काम करना पड़ता था, जबकि जो हाथ से काम करने वाले या जो अपने घरों में काम करने वाले मजदूर थे उनको कंपटीशन में और भी ज्यादा काम करना पड़ता था, और वो भी बहुत ही कम मजदूरी की दर पर। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट थे, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा थे। शहरों के अंदर वर्कर्स की जो कंडीशन थी, लिविंग एरियाज थे, वो अच्छे नहीं थे, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं थी। बहुत सारे लोग शहरों के अंदर डॉर्मेटरीज में रहते थे, यानी कि एक बड़ा सा हॉल कमरा जिसमें कि एक बेड उनको किराए के लिए मिलता था और एक लॉकर जिसमें कि वो अपना सामान रख सकते थे। काम पाने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था, लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते थे। और
इस तरह से जो मिलता था वो इतना नहीं था कि वो आराम से अपना गुजारा कर सके, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट केवल उतना ही देते थे जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि अगर आज ज़्यादा तनख्वाह देंगे तो कल मजदूर मजदूरी के लिए नहीं आएंगे। इसलिए मानसिकता ये थी उद्योगपतियों की कि इतना ही दिया जाए जिससे कि एक दिन का गुजारा अपना कर सकें।